Hare Krishna, Guruji. प्रभु हरे कृष्ण आदित्य प्रभु दंडवत प्रणाम. You reached your home? Yes, Guruji, I left you and came here. Now you went to your real parents. No, I came from my real parents to material parents. No distinction in spiritual life. Both are equally important. क्षितिज प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी कहाँ पे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. आज बैंगलोर पहुंचा हूँ. आज घर पहुंच गया ना? हाँ बैंगलोर में आज. हाँ यस तो बैकग्राउंड देख के पता चल गया होटल वाला बैकग्राउंड नहीं. वेरी नाइस. आप घर पहुंचे आदित्य प्रभु घर पहुंचे. वेरी नाइस. No, Guruji, it is not the correct statement. हम घर से बाहर चले आए. बताता हूँ थोड़ी देर में. कहाँ सुने दीजिए. हाँ यस रोजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम. तारा माता. हरे कृष्णा सबका स्वागत है टू द डेली discussion on the Bhagavad Gita. Today's discussion is आज भगवद गीता ना प्रभु? Yes, Guruji, Bhagavad Gita. We were discussing about 14. I will. कौन सा हो गया? 14. 14 हो गया थोड़ा बाकी है. I think we were almost discussing the purport. Like we were almost complete. I posted the recap in the chat. Okay, one moment. Lord says if you want to be so, you should know how this universal government was. ठीक है. Wonderful. Daily class. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम. श्री भगवद गीता तीसरा अध्याय. डिस्कसिंग logging from my laptop also. One device shut off. Is she okay? Recording in progress. हाँ अटेंड किए हैं. I will share my screen. 3.14. Anybody को किसी को सवाल है? Because we're discussing daily, regularly, just continuously. तीसरा अध्याय के इतना important section अभी चल रहा है. And if anybody has any questions on this particular chapter, we can discuss. Because in essence, it is such an important chapter. Mataji Hare Krishna, Dandavat Pranam. Guruji, I don't have any question, but one realization, short. Yeah, go ahead. बैन कर रही हूँ. हाँ ठीक है ठीक है. अभी अब खुश हैं प्रभु जी घर आ गए आज अभी. Yes, Prabhuji, you can share your realization. Yes. So, Prabhuji, when I was coming today, I was looking out from the window of the train, and there were like dense forests. So I was looking, I was thinking that now it is the rainy season, so everywhere there is the vegetation, everywhere it is the green. I used to look the same forest in the summer season. It used to be the brown color, like no vegetation, nothing. So I was feeling so thankful to the Lord Krishna that he is ensuring that in the rainy season, every single plant, every single tree is growing well. They are getting the water.
no need of any manually going to the trees, like he's supplying the water. Additionally, in this season, I see in the farming land, the farmers have just plowed their lands. They are just waiting for the rains to happen. So they are so eagerly waiting for the Krishna to implement his plan. So it is looks so nice, so well curated, well calculated plan the Krishna is doing. In each and every cycle of the farm, the farmers just plow their land and they just wait for the Krishna to run their magic on them. So just I know trains are my default realization when I look at so many when I look at so much plants and trees throughout my journey when I go to Hyderabad, I just wonder each and every plant and tree that we see, that is a living entity. yes, And I am amazed with how many living entities are surviving in that place and unlimited. When we say unlimited living entities, realize hota hai कि अरे लगातार in some pockets from Pune to Hyderabad, nothing but you will see forest, jungle hai, kuch greenery hai, and it's all. So I just think is how many living entities are deprived of Krishna. I mean, they no chance that we can practice Krishna consciousness, and that is the biggest loss for the living entity. Just staying in in the body of a tree or plant, and that's it. And there's no scope only in that body to connect with Krishna, the all merciful and all powerful. So that the realization that we should, unless we become serious in Krishna consciousness, we can become a tree or plant somewhere in some middle of the nowhere section, yes. and that will be such a big loss. Yes, true. Thank you so much. 3.15, we will start with Karma Brahmodbhavam Vidhi Brahmakshara Samudbhavam Tasma Sarvagatam Brahma Nityam Yagye Pratishtitam. Krishna continues his glorious cycle that is started in the previous verse. Bhagavan के previous श्लोक में what did the Lord tell? Can anybody summarize? तारा माता जी 3.14 में what is the cycle? भगवान एक cycle कौन से शुरू किए 3.14 में? Is she there? Is माता जी there? तारा माता जी, are you there? बारिश यज्ञ करने से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न पैदा होता है और स्टार्टिंग से साइकिल स्टार्टिंग से करते हैं, अन्न से स्टार्ट करिए जब हमको वर्षा भगवान वर्षा देते हैं तो अन्न मिलता है। नहीं, स्टार्टिंग की लाइन क्या है? स्टार्टिंग लाइन पढ़िए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यान्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। राइट, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट भगवान कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से सब लोग पोषित होते हैं। और अन्न कहाँ से होता है? अन्न वर्षा से पैदा होता है, वर्षा आती है तो अन्न पैदा होता है। अच्छा, वर्षा कहाँ से होता है? वर्षा जब यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है। ठीक है, और वर्ष कहाँ से होता है? यज्ञ कहाँ से होता है? यज्ञ जो हम कर्म हमारे कर्मों के साथ में जब हम यज्ञ जुड़ता है तो यज्ञ से यज्ञ मनुष्य द्वारा होता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है। ठीक है, एंड यज्ञ कर्म समुद्भव, तो वो आप ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़िए। यज्ञ, आपके पास हिंदी है कि इंग्लिश है? प्रभु जी मेरे पास हिंदी है। हाँ, तो हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़िए माता जी। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? नियत कर्मों से, जो हम कर्म करते हैं, हाँ, उससे उत्पन्न होता है। तब यहाँ देखिए इसी साइकिल, अब नियत कर्म, तो कर्म ब्रह्म उद्भवम, इसका डिटेल में चर्चा किया है।
कर्म उद्भवम डिस्कस की कर्म के साथ ही यज्ञ का उद्भव हुआ है। इट्स नॉट दैट कि हम कर्म अलग करेंगे और उसके बाद यज्ञ सेपरेट। यज्ञ भगवान कहते हैं कर्म जैसे इस सृष्टि में मनुष्य स्टार्ट हुआ है उसी के साथ साथ भगवान कहते हैं यज्ञ भी स्टार्ट हुआ है। यज्ञ कर्म सम उद्भवम, सम उद्भव उद्भव हुआ है। और डिटेल में चर्चा किया है कि जस्ट टेकिंग केयर ऑफ फैमिली इज नॉट ए कर्म, उसके साथ यज्ञ करके उन जीवात्माओं को भगवान से कनेक्ट भी करना, दैट इज बेसिकली बिगर साइकिल। सो दिस इज व्हाट अभी इस आज के श्लोक में भगवान कहते हैं। आज के श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़िए। आज कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। क्योंकि लास्ट श्लोक में हम छोड़ दिए थे कि कर्म यज्ञ कर्मोद्भवम, लेकिन अभी कोई कहेगा कर्म कहां से मिलेंगे हमको, तो भगवान कहते भाई तुमको कर्म ब्रह्म उद्भवम। बिकॉज कौन सा कर्म करने से, ठीक से हम कौन सा कर्म करने से वो यज्ञ माना जाएगा और यज्ञ के माध्यम से आगे चल के फिर बारिश होगा। तो भगवान कहते हैं कोई कहेगा भाई क्या कौन सा कर्म, तो भगवान ने ये कर्म ब्रह्म उद्भवम। ब्रह्म मतलब प्रॉपर ट्रांसलेशन फ्रॉम द वेदास, वेदों में कर्म लिखे गए हैं। मनुष्य जाति के लिए ये कर्म करना चाहिए और ये कर्म नहीं करना चाहिए, और ये कर्म करने से यज्ञ माने जाएगा और विष्णु संतुष्ट होंगे। एक दैट इज फर्स्ट लाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा वेद कहां से आए हैं? भगवान ने कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म अक्षर सद्भव ब्रह्म, वो ही वेद। देखिए ऊपर फर्स्ट लाइन में ब्रह्म आया है और सेकंड लाइन में फिर से सेम ब्रह्म अक्षर वेदस। कहां से? अक्षर, फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, अक्षरधाम। अक्षर is one more basically from, it is basically supreme Brahman और basically God only। समुद्भवम, तो पिछले श्लोकों में भी समुद्भव था। तो भगवान कहते वेद भगवान के साथ ही समुद्भव हुआ है। As soon as the Lord manifested in this universe, simultaneously almost ब्रह्मा को, जैसे हमने कल चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मा का 1000 साल तपस्या करने के बाद तुरंत वेद मैनिफेस्ट कर दिया भगवान ने। अब तब से लेकर जब तक ब्रह्मा जी नहीं मरेंगे 100 साल तक, वो वेद मनुष्य इस ब्रह्मांड में हमेशा रहेंगे। ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नियतम नियतम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो इन एसेंस देखिए भगवान एक साइकिल यहाँ पे बताया है। अब उल्टा जाएंगे, उल्टा में देखिए भगवान ने वेद दिए हैं, वेद में कर्म बताए गए हैं, वो कर्म ठीक करने से यज्ञ होता है, यज्ञ ठीक से होने से बारिश होता है और बारिश होने से अन्न उत्पन्न होता है। अभी इसका सोर्स क्या है, या फिर इसका अल्टीमेटली सोर्स और उसका केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु कृष्ण है। इट स्टार्ट विद कृष्णा। तो भगवान ने बताया कि ये सारा जो साइकिल है मेरे ऊपर निर्भर है अर्जुन। मैं अगर वेद नहीं देता तो खत्म ही हो जाता। करेक्ट है माता जी? माता जी राइट और रॉन्ग? जी। अगर भगवान ने वेद दिए ही नहीं होते तो ये पूरा साइकिल हम क्या करते हैं? ना तो हमको ठीक से वेद, ना तो ठीक से हमको कर्म भी पता चलता क्या कर्म करना चाहिए, उस कर्म को जी। यज्ञ के रूप में कैसे कन्वर्ट करना वो भी पता नहीं चलता। और यज्ञ नहीं होता तो बारिश नहीं, और बारिश नहीं हो तो अन्न नहीं है, अन्न नहीं है तो हम जी नहीं सकते। तो इस तरह से एक बहुत सिद्धांत भगवान बताते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर कोई पूछेगा क्यों भगवान का हम बात मानना चाहिए, क्यों भोग लगाना चाहिए, क्यों चार नियमों को पालन करना चाहिए, क्यों गीता और भागवत के बेस पर हमारा जीवन जीना चाहिए, भगवान कहते हैं दिस इज द रीजन कि तुम अन्न के ऊपर निर्भर हो। और वो अन्न, अभी साइकिल बता के अन्न का, वो अन्न अल्टीमेटली मैं उसका सोर्स मैं हूं। मैं वेद नहीं देता था तो ये अन्न उगता ही नहीं था। भगवान कहते बारिश खत्म हो जाता था क्योंकि यज्ञ नहीं करने से बारिश ही नहीं होता, और बारिश नहीं होता तो तू अन्न कैसे आएगा? भगवान कहते अल्टीमेटली आई एम दी सेंटर, आई एम द सोर्स ऑफ द साइकिल, इसलिए तुमको मेरी बात मानना आवश्यक है।
These two questions answer a very simple question. Why should we listen to God? Why should we submit to God? Krishna is giving a cycle here, and that is how we should do it. तो यही सिद्धांत भगवान ने 3.9 में बताया था, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, और उसी सिद्धांत को 14 और 15 में और क्लियरली आप देखिए। 9th का डिटेल्ड, कोई कहेगा अच्छा ठीक है, भगवान कहते हैं कि उनकी संतुष्टि के लिए करना चाहिए, करेंगे, लेकिन कन्विक्शन नहीं है कि करना चाहिए। और कन्विक्शन के लिए भगवान यहां बताते हैं दिस इज हाउ वी शुड डू, और क्लियरली कहते हैं अरे ये करना ही पड़ेगा तुमको, एक साइकिल है। 3.9 को भगवान अन्य को उदाहरण से डेवलप करते हैं, क्योंकि विष्णु को संतुष्ट करने के लिए हमको काम करना चाहिए। तो पहला चीज ये पूछे भाई काम कैसे करें, फिर हम मांसाहार खा सकते कि नहीं खा सकते, हम जुआ खेल सकते कि नहीं खेल सकते, बिकॉज विष्णु को संतुष्ट करना है तो विष्णु से ही हमको ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए वेदों में ढूंढना पड़ेगा कि भाई वेद में इस प्रभु ने क्या लिखा है। इसीलिए वेद क्या है, वेद भगवान से उत्पन्न हुए हैं। ये श्लोक में डायरेक्टली कहते हैं ना, कोई कहेगा क्या प्रूफ है वेद भगवान से आए हैं। अब यहाँ पे श्लोक में देखिए ना, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, सेकंड लाइन, ब्रह्मा the Vedas, Prabhupada के translation word to word English में देखिए, ब्रह्मा the Vedas, अक्षरा from the supreme personality of Godhead, samudbhavam directly manifested। वेद को चल के भी बहुत लोग क्वेश्चन नहीं क्या प्रूफ है कि वेद व्यास ने इन तो लिखे थे 5000 वर्ष पूर्व, क्या गारंटी है कुछ कंटेमिनेट नहीं हुआ है, उसमें डुप्लीकेट नहीं हुआ है। भगवान वो सारा चीज क्लियर कर देते हैं। भगवान ने कहते हैं अरे ये वेद कोई व्यक्ति वेद नहीं लिखे हैं। भगवान ने कहते हैं इस श्लोक में, they see so many small things about the Vedas, about spiritual life, so get clarified in the Bhagavad Gita purport। हम ध्यान से अगर पढ़ेंगे उतना क्लैरिफाई होता है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, वेद भगवान से निकले हैं। इसलिए वेद में जो कहा गया है वो करेंगे तो वो कर्म है, और वेद में जो नहीं कहा गया वो करेंगे तो वो अकर्म, वो विकर्म है, विकृत रूप का कर्म है। मांसाहार नहीं करना चाहिए, ठीक है हम खाएंगे तो विकर्म माना जाता। विकर्म का रिएक्शन क्या है, पाप। वेद में कहा गया है कि भगवान को भोग लग के ही व्यक्ति को खाना चाहिए, नहीं लगाएंगे तो वो विकर्म। इसलिए वेदों से हमको ठीक से गाइडेंस लेना चाहिए, उस हिसाब से काम करना चाहिए। प्रभुजी पर्पण में कहते हैं प्रामाणिक साधारण जीवन में भी हम अपना सरकार का, महाराष्ट्र सरकार कहता है कि भाई आप महाराष्ट्र में लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाइए और आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरिए, सिग्नल मत तोड़िए। प्रभुजी कहते हैं साधारण जीवन में भी हम एक सरकार के नियम को पालन करते हैं। कितना अच्छा उदाहरण है। तो प्रभुजी कहते इसी तरह ये एक तुम्हारा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, इसी तरह भगवान ने इस चैप्टर में एक और गवर्नमेंट का उद्घाटन किया है, या फिर एक और गवर्नमेंट का हमको पूरा यहाँ पे रियलाइजेशन करवाया है। भगवान ने कहते भाई एक और यूनिवर्सल गवर्नमेंट है जो देवी देवता और मैं चलाते हैं। भगवान ने कहते अच्छा कोई व्यक्ति का अच्छा एक और गवर्नमेंट है। जैसे अभी हम भी देखिए, हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को नियमों को पालन करते हैं। क्या जो कोई ये कहेगा नहीं हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम को पालन नहीं करेंगे, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट है। इसी तरह भगवान कहते हैं कि जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो, इसी तरह इस यूनिवर्सल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और वेद में प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक है अस्य महतो भूतस्य
निश्वसितम एतद् यज् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्व अंगीरसः अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम। कितना सुंदर श्लोक। बृहदारण्यक उपनिषद में, उपनिषद दे आर बेसिकली टेकिंग सो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन अबाउट गॉड। वहां पे कहते हैं अस्य महतो, ये वेद कहां से निकले हैं? निश्वसितम, they emanate from the breathing of the supreme personality of Godhead। कोई कहेगा अरे प्रभु जी ब्रीदिंग से कैसे हो सकता है? Because the Lord is saying why not। भगवान ब्रीदिंग, जस्ट बाय श्वास लेके भगवान ने वेद उत्पन्न किए। ही स्पोक द वेदास जस्ट बाय स्पीकिंग, है ना। अब ये देखिए वेद का रूट यहाँ पे बताया जाता है और वेद का नाम भी दिया गया बृहद अरण्यक उपनिषद में, ऋग यजुर साम अथर्व वेद। लेकिन कोई कहेगा अरे पता नहीं कहां से उत्पन्न हुए हैं। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम, बेसिकली दे आर कमिंग फ्रॉम कृष्णा। ये सिंपल से श्लोक, अगर कृष्ण से ये चार उत्पन्न वेद उत्पन्न हुए हैं, फिर इन चार वेदों का मकसद क्या होगा? मकसद इस बात, मकसद विल बी टू अंडरस्टैंड कृष्ण। कृष्ण ने वेद दिए हैं कि कृष्ण हमको वेद देके ये बताएंगे कि जाओ देवताओं की पूजा करो। ऐसा हो सकता है? पितरों की पूजा करो या फिर तुमको जो करना है करो, कैसे कहेंगे वो? नहीं। This is also one pointer to us, because the Vedas are coming from Krishna. The essence is also to understand him। और वेद में क्या दिए हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं he gave his directions in the Vedic wisdom as to how such conditioned souls can return home back to Godhead। वेद में अल्टीमेटली प्रभुपाद जी सुंदर सिद्धांत कहते हैं, व्यक्ति को वापस भगवत धाम जाने के लिए वो ही वेद में दिया गया है और कुछ भी। दैट इज एसेंस ऑफ द वेदास। Many people who read the Vedas, they get carried away कि नहीं ये मंत्र पढ़ना है, वो यज्ञ करना है, ये मुद्रा करना है। अरे नहीं, that is not the essence of the Vedas। The Vedas essence is to somehow we have forgotten the Lord and come to this material world। Vedas are like the mother, Krishna is the father। Both the mother is basically they are helping us to go back to Krishna by telling us अरे you came to the wrong place, go back। उतना ही वेद का मकसद है। There's nothing else the Vedas need to do or tell us। एट द सेम टाइम प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं जीव यहाँ पे आया है भोगने के लिए, भगवान से अलग होके। सो ही विल हैव नेचुरली एन नंबर ऑफ मटेरियल डिजायर्स टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड। तो वेद क्या करता है? वेद का बहुत बड़ा योगदान है। वेद क्या करता है? ठीक है तुमको एंजॉय करना है, ठीक है एंजॉय करो, लेकिन वेदों के पेरीमीटर में स्टे विद इन द बाउंड्री ऑफ द वेदास एंड यू एंजॉय। प्रभुपाद जी सुंदर तरीके से कहते हैं, बट द वैदिक डायरेक्शंस आर सो मेड दैट वन कैन सैटिस्फाई वन्स परवर्टेड डिजायर्स, देन रिटर्न टू गॉडहेड हैविंग फिनिश्ड हिज सो कॉल्ड एंजॉयमेंट। बाप रे, इतना कड़क शब्द प्रभुपाद यूज करते हैं। प्रभुपाद जी का वर्ड देखिए लास्ट में, they are made so that one can satisfy one's perverted desires and then return back to भगवान। तो व्यक्ति यहाँ पे आएगा, उसके हजार इच्छा है, वेद कहते ठीक है पूरा कर लो भाई। और जब तुमको लगता है कि बहुत हो गया अब नहीं है, तो then the Vedas are say when basically they can go back to Krishna। perverted desire क्या है? जैसे कल हम चर्चा करते थे बवया आमिष मद्य सेवा एक परवर्टेड डिजायर है। शराब पीना इट इज परवर्टेड डिजायर, क्योंकि शराब पी के व्यक्ति करता क्या है? शराब पी के व्यक्ति एक मतलब बंदर के जैसे बनता है ना, कुछ न कुछ बोलता रहेगा, या फिर कभी कभी लोग उल्टी करेंगे, हजार चीजें होती है, वो इट डजंट रिमेन सेन पर्सन। तो ये परवर्टेड डिजायर है। तो वे तो बोले कोई बात नहीं पियो, तो कुछ ही अभी किसी देवता को भोग लगा के पी लीजिए।
मांसाहार खाना है, ठीक है, माँ काली को भोग लगा के, ये सारे जितने भी चीजें हैं perverted desires, Krishna is saying the Vedas allow, okay, you stay within the boundary of the Vedas and you fulfill your desires, and then अगर जब आपको हो गया, then you go back to Krishna. 3.16 एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यह इसलिए भगवान कहते हैं इसी तरह ये साइकिल पूरा मेरा ऊपर निर्भर है, इसलिए मुझे यज्ञ करके तुमको संतुष्ट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भगवान कहते हैं अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सेवित। भगवान कहते हैं अरे इफ यू डोंट फॉलो दिस साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, इतना बोलने के बाद भी भगवान कहते हैं अघायुर, अघ आयु, अघ मतलब पाप। एक राक्षस था कृष्ण लीला में, किस नाम से बताएगा कोई, कौन है? अघासुर, प्रभु जी अघासुर। अघासुर, तो नाम में ही पाप है, अघासुर। तो अघ आयु, भगवान कहते अरे नहीं प्रभु ये सब ठीक है, आप कहते हो भगवत गीता में नहीं ये सब भोग लगाना चाहिए, भगवान को नित्य सेवा देना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं करते हैं। भगवान कहते अच्छा तुम मतलब अभी तुम नहीं करोगे, नहीं करेंगे लेकिन सोचेंगे पहले, अभी ये सब पहले तो अभी बिजी हैं, एडमिशन करना है बच्चों का, इसी में अगर उलझ जाओगे और इन नियमों का पालन नहीं करोगे, जैसे सिंपल है महाराष्ट्र सरकार के नियम का, आप ये नहीं कहेंगे कि प्रभु आप जाके, मान लो कि हम ट्रेन में जा रहे हैं और बिना टिकट के चढ़ गए, और मान लो कि सुधांशु प्रभु आपको भी लेंगे टीटी वहां पे, और हमको कहेंगे देखो आप टिकट तो लेना चाहिए, लेकिन अब हमारी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, हमारा लोन चल रहा है इतना सारा, 2-3 लोन ज्यादा हो गए, ये महीने पैसे नहीं थे तो बिना टिकट के हम चढ़ गए, तो प्रभु जी विल यू अलाउ इट? ठीक है बैठ जाइए, कोई बात नहीं, आपका लोन है तो हम समझ सकते हैं, आप अलाउ करेंगे? नो नो प्रभु जी। इसी तरह भगवान ये तो फिर यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, यहाँ पे भगवान क्यों, वाई डू यू थिंक यहाँ पे चल जाएगा? यहाँ पे एक छोटा सा टिकट नहीं लोगे कभी कभी, अभी तो ठीक है, पहले तो वो 2 रुपए का 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट लेके जाना पड़ता था, अब वो जमाना चला गया, लेकिन उस टाइम पे इतना स्ट्रिक्ट, किसी को लेने जाओ तो अगर भूल गए प्लेटफॉर्म टिकट के और अगर पकड़ लिया उसे टीटी, तो वो इतना सताएगा, नहीं प्रूव करो कि तुम ट्रेन से नहीं उतरे हो, है ना। पर 10 रुपीज टिकट नहीं करोगे तो उसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं कन्विंस हो तो वो बोलेगा चलो टीटी के रूम पे स्टेशन मास्टर के कैबिन में जाओ, फिर इतना एक 10 रुपए के टिकट नहीं लिए तो भगवान कहते हैं अरे ये ब्रह्मांड ऐसे ही चल रहा है क्या, यूनिवर्सल गवर्नमेंट क्या, तुम सोच रहे हो ऐसे ही चलता है, कैसे चलेगा? कितना सुंदर चैप्टर है ना ये 3rd चैप्टर भगवत गीता, मेरे ख्याल में सभी स्कूलों में पहले ये चैप्टर सिखाना चाहिए, बाकी सब छोड़ दी, गीता की शुरुआत इसी चैप्टर से करना चाहिए, बिकॉज भगवान ये इस ब्रह्मांड, भगवान और हम में, तीनों में क्या रिलेशनशिप है, इस चैप्टर में भगवान खोल देते हैं, ये इतना हाई सीक्रेट है। जैसे कल चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते थे परम गुह्यम, भगवान कहते हैं ब्रह्म, हे ब्रह्म ज्ञान नॉलेज अबाउट मी इज मद परम गुह्यम, तो हम कहते हैं तो क्या परम गुह्यम हो सकता है? भगवान ये परम गुह्य चीज है कि इस तरह से भगवान, हम और ब्रह्मांड में ये रिलेशनशिप है, दैट इज द मोस्ट सीक्रेट। अगर सीक्रेट नहीं बताते थे भगवान, और हम कैसे इस साइकिल को फॉलो करते थे, अगर नहीं बताते भगवान कि ये देवी देवता तुम, दे आर बेसिकली गिविंग यू सो मेनी थिंग्स, यज्ञ करके इनको संतुष्ट करना है, अगर नॉलेज नहीं होता तो कभी फॉलो नहीं करते, नहीं करते तो निकल ही नहीं पाते थे। इसलिए कल भगवान कहते नॉलेज अबाउट मी इज कॉन्फिडेंशियल एंड गुहिया। ये कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं बताइए आप? कितने सारे ये कितने अभी 16 श्लोक ही हुए हैं 3रा अध्याय में, और उस तो मेन तो हमने 9th से शुरू होता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, देखिए गिन के 8 श्लोकों में कितना भगवान ने ज्ञान दिया है, कितना कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है।
इसलिए भगवान खुद कहते हैं राजविद्या राजगुह्यम, अपने ज्ञान को भगवान खुद ग्लोरीफाई करते हैं, विच इज करेक्ट, गुह्य चीज है ये। हम गुह्य चीजों में पढ़ा है कि ये गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल है, वो कॉन्फिडेंशियल फाइल है, कॉन्फिडेंशियल मैटर है। देखो एफबीआई के पास, सीबीआई के पास जाके पूछिए तो ये केस के बारे में क्या हुआ, जरा बताइए। आप मान लो कि पूछ लीजिए भाई ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जरा बताइए, आपको ये नहीं कहेंगे भाई ये लीजिए फाइल पढ़ लीजिए, वो कुछ भी नहीं बताएंगे, अरे वो सर कॉन्फिडेंशियल चीज है, दे विल नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग। डू वी नो, मान लो कि नरेंद्र मोदी आते हैं पूना में, आप पूछिए अच्छा बताइए नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट में उतरेंगे तो कौन से कार में बैठेंगे, अरे वो कौन से कार में बैठेंगे तुमको कैसे बताएंगे, वो इतना हाईली कॉन्फिडेंशियल है, उसमें 20-25 गाड़ी निकालेंगे, उसमें कोई तो एक गाड़ी में मोदी बैठेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी गाड़ी में बैठे हैं। सीक्रेट है, भगवान कहते हैं इसी तरह ये पूरा ज्ञान सीक्रेट, भगवान कहते हैं ये पूरा यूनिवर्सल गवर्नमेंट इस तरीके से चलता है, अगर नहीं फॉलो करोगे बहुत होशियार बन के या फिर जो भी करके, नहीं 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 ये तो इस्कॉन वाले हैं, गीता वीता, ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। जब रोड पे जाते हैं हरिनाम करेंगे, कितना लोग कहते हैं नहीं गीता वीता नहीं, दिक्कत नहीं, गीता नहीं चाहिए, रिजेक्ट। तो कृष्ण से जो नहीं बोल रहा है गीता को तो नहीं फॉलो कर रहा है, भगवान गीता उसके बारे में अघ आयु, बाप रे, भगवान की तो उसको पूरा आयु ही पापमय है। अच्छा इतना पाप है, भगवान कहते यस, इस यूनिवर्सल गवर्नमेंट को नहीं मानोगे, भगवान कहते अघ आयु, यू हैव टू फॉलो, तुम्हारा जीवन। लेकिन वो व्यक्ति कह रहे मैं हम पापी कैसे हैं, हम आईटी इंडस्ट्री से हैं, हम एफसी रोड आए हैं सिर्फ घूमने के लिए वीकेंड पे, हम अच्छे इंसान हैं, हम पटना से हैं, हम कभी स्मोकिंग नहीं किया, हमने जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाया है, भगवान कहते गुड, पर कभी कृष्ण और इनकी सत्ता को मानी है, नहीं नहीं मानो तो क्या हो गया, हम अच्छे इंसान हैं, भगवान कहता है अच्छे इंसान तुम सोच सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से भगवान कहता है अघ आयु, इतना शक्तिशाली। भगवान कहते हैं एक श्लोक में इससे पहले कहा भगवान इस तेना चोर, उसके बाद भगवान के पाप अब अघ आयु, तुम्हारा जीव, भगवान कहते हुज लाइफ इज फुल ऑफ सिंस, आयु में भर भर के पाप ही है। लगेगा व्यक्ति काम करता है बहुत अच्छा लड़का है प्रभु जी, उसने बोला बचपन से हमारे घर में कभी नॉनवेज ही नहीं, कभी इज वेरी नाइस पर्सन, उसके भगवान कहते गुड, लेकिन उसका अघ आयु, इंद्रिय आराम मोघम। कोई कह रहा प्रभु ऐसे कैसे कह रहे कि हम अघ आयु, भगवान कहते क्यों इंद्रिय आराम, तुम्हारे इंद्रियों की संतुष्टि के लिए तुम जी रहे हो भाई, आराम, बस इंद्रियों का आराम देना है, तुमने ये नहीं सोचा कि जीवन का लक्ष्य इंद्रियों को आराम देना नहीं है, ये इंद्रियों कितना आराम दोगे, इंद्रिय का जीवन का लक्ष्य है इस आत्मा को यहां से निकाल के वापस भेजना है, वो जीवन का लक्ष्य। लेकिन तुमने ये सोचा नहीं इंद्रियों को आराम देंगे, इंद्रियों को लगता है चिकन बिरयानी तो खिला दीजिए, कोई बात नहीं, भोग भोग बाद में देखेंगे, खा लो पहले, भूख लगी है। इंद्रिय आराम मोघम मोघम पार्थ सजीव, भगवान कहते यूजलेसली, यहाँ शब्द तीसरे अध्याय भगवान लगता है, मतलब तीसरे अध्याय भगवान पूरा मूड में थे, पकड़ के, मतलब जीव को देखे भगवान को कभी तो गुस्सा आता, क्या है कितना ये बदतमीज है, इतना फूलिश है, पापा जी कहते हैं कभी कभी भगवान कितना शब्द अघायु मोघम पार्थ, भगवान कहते हैं उसको वेस्ट है, ले कभी कभी जो कहता है अरे तुम्हारा जीवन वेस्ट है, तुम जीते ही क्यों, मर क्यों नहीं जाते, झगड़ा में कभी कभी पति पत्नी झगड़ो, डायलॉग्स है कॉमन, इसलिए एक दूसरे को एक्साइट करने के लिए, आग जलाने के लिए, तुम्हारा जीवन क्या है, तुम जी के इससे से मर जाओ, भगवान कहते हैं यूजलेस है तुम्हारा जीवन, बाप रे हमारे जीवन यूजलेस है, ऐसे कैसे कहते हैं, हम तो इतने बड़े परिवार से खानदान से, हम 25 लोगों की जॉइंट फैमिली है, हमारे इधर घर है लखनऊ में, हम इतना बड़ा कारोबार है, हम ये कराते हैं, हम ये चिप्स बेचते हैं सालों से, भगवान गुड सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुम्हारा जीवन वेस्ट है,
वेस्ट है। भगवान कहते हैं वाह ये वेस्ट है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय आराम, तो अपने इंद्रियों के लिए जी रहे हो। कभी तुमने ये जो साइकिल है, भगवान कहते हैं यज्ञ तुम जानते नहीं कोई यज्ञ क्या है, यज्ञ नहीं करते हो, तुम्हारा जीवन वेस्ट है। ये बस मनुष्य जाति को अगर मेरा बस चलो तो यही 9th से लेकर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 8 श्लोक रोज अगर मुझे चांस मिले 365 days a year for rest of my life, I will speak on this 8 verses daily. बस यही 8 श्लोकों की कमी ही है जीवन मनुष्य समाज में। इसलिए अपने परिवार में, फैमिली में अगर गीता के बारे में कभी बताना है, इसी श्लोकों को उठाइए, 9th श्लोका से उठाइए और 16 से खत्म कर दो, पर्पस के साथ समझाइए। बहुत बड़ा साइकिल, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है। भगवान के उसको पूछिए क्या बता रहे भगवान, पूछिए। इंद्रियाराम अघायु, अगर हम 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं, भगवान को हमारे सैलरी से, बिजनेस से 10% नित्य सेवा नहीं दे रहे हैं, गीता भागवत नहीं पढ़ते हैं, एकादशी का पालन नहीं करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, नम्र नहीं बनते हैं, सहिष्णु नहीं बनते हैं, भगवान कहते हैं योर वेस्ट अघ आयु इंद्रियाराम। ये 8 श्लोक बचपन में कोई सिखा दिया होता तो कितने अच्छा जीवन जीते थे ना। कम से कम पता तो चलता है करना क्या चाहिए। बस सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ये 8 श्लोकों के फॉलो नहीं करते। इसलिए क्या है, इसलिए पापी, चोर, है ना, यही हमारे लिए एप्लीकेबल है। अघायु इंद्रियाराम मोघम, इसलिए दुखी है। परपट मंडे डिस्कस करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तारा माता जी, who is good to you? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। बोल दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी, वो तो मैं दंडवत प्रणाम। कल निकाला। हरे कृष्णा दंडवत। अभी परसों अगर रहता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आकाश टू, वेयर आर यू? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बस प्रभु जी, बस में हरिद्वार जा रहे हैं। महाराज पहुंच गए आपसे पहले। ठीक है, चलेगा। ओके ब्रो, हरि बोल। हरे कृष्णा। रीना माता जी, आर यू हैप्पी योर हस्बैंड इज बैक होम? रीना सोनल माता जी।